Hello, good morning, dear students. Good morning, good morning. I am S.K. Nayak, Kendriya Vidyalaya COD. For class 9th particular chapter lines and angles मैं लेकर आपके साथ हूँ और just we will try to learn about the lines and angles. Not learn, we will recall some topics, then we will start line and angles at the standard of class 9th. Okay. So my dear students, let me start the lesson lines and angles. बेसिकली लाइंस और एंगल्स में जितने भी कंटेंट्स होंगे वो सारे के सारे प्रीवियस क्लासेस से कनेक्टेड होंगे. सो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट पैरेलल लाइंस. ओके. So many times teacher ask in the class from the students what are the parallel lines. So one line definition is there, line that do not intersect each other. See the example, line L and M are parallel to each other and notation जो होगा parallel का वो होगा ये डबल लाइन जो देख रहे हैं ना आप, ये वाली है, दिस इज़ द पैरेलल लाइन. ओके. तो एल इज पैरेलल टू द एम, क्लियर हो गया ये. अब इसको देखिए, दीज टू लाइन्स ए बी एंड सी डी आर ऑल्सो पैरेलल. तो ए बी के ऊपर जो ये आजकल ये एरो है ना, ये ओल्ड वर्जन ऑफ एनसीईआरटी पहले लगता था, अब आजकल लगाना बंद कर दिया है. बट अगर आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं, सो यू हैव टू राइट on the line AB both side arrow and CD both side arrow, क्योंकि लाइन की डेफिनेशन आप लोगों ने क्लास 6-7th स्टैंडर्ड पर क्लियर की होगी. सो L इज पैरेलल टू द M एंड AB इज पैरेलल टू द CD. द कंडीशन इज दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. बताइए, अगर AB और CD इंडेफिनेट डायरेक्शंस में अगर आगे प्रोड्यूस करते चले जाएं तो दे डू नॉट मीट ईच अदर, कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी. सो वी कैन से दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइन्स, हार्डवुड फ्लोर यू सी. ओके. एंड अपोजिट साइड्स ऑफ विंडोज, डेस्क, पैरेलल लाइन्स के एग्जाम्पल्स हैं. पार्किंग स्लॉट्स इन पार्किंग लॉट, ये देखिए पार्किंग स्लॉट्स ये सब बने हुए हैं पैरेलल. यस यस यस. एंड parallel parking also. Streets, Laramie and L'Equerrier. These two words are especially French words, but in Indian streets you can see this is the pavement. Okay, this line is clearly you can see, and if you draw the line between these two vehicles, okay, and if they are parallel then they do not intersect each other, right? So parallel lines के example हमारे around us, so many examples are there. See, this is the street Belmont and schools का है ये. so many lines are, आप अपने स्कूल के प्ले ग्राउंड में देखिए, आप अपने स्कूल के असेंबली ग्राउंड में देखिए, so many examples are there. okay. Now we will take perpendicular lines. Parallel lines के बाद perpendicular lines भी क्लियर करना ज़रूरी है, because topic name is lines and angles. So perpendicular lines की definition क्या होगी? Lines that intersect to form a right angle. Right angle how many degree? Right angle is 90 degree. Right angle is 90 degree. अब ये 90 डिग्री का ये सिंबल आता है इतना सा, ये स्क्वायर टाइप का बना देते हैं. ओके, एक टाइल्स है. So M is parallel to the N और N is parallel to the M. अगर इस डायरेक्शन से आप देखेंगे तो नोटेशन क्या होगा? वेरी गुड, दिस इज़ द परपेंडिकुलर का नोटेशन हो गया, जबकि पैरेलल का नोटेशन आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा होगा इस तरह से था. सो व्हाट इज द की फैक्ट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन? 4 right angles are formed. 4 right angles, 1 and this is 2, this is 3 and this is 4. These 4 right angle makes complete angle. Okay, सो परपेंडिकुलर लाइन का सिंबल याद हुआ आपको,
और पैरेलल लाइंस का भी याद हो गया. एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर इन अवर डेली लाइफ. विंडोज़ पैंस को देख लीजिए, ओके, डोर में भी देख लीजिए, कॉर्नर्स एजेस उसकी, स्ट्रीट में भी देख लीजिए आप लोग, ओके. एवरीवेयर इज परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस इन दिस सीन ऑल्सो. सी द पिक्चर, line perpendiculars, red lines, you see red lines. Now take transversal. Transversal basically two lines को intersect करने वाली lines को बोलते हैं. ये देखिए, ये blue कलर में जो आपके पास है, if these two lines intersect by this line T, so this line is called transversal. Means a line that intersects two lines at different point, ये देखिए, different points, so this line T is called transversal. Okay, now let's be understood about the vertically opposite angles. Vertically opposite angles, two angles that are opposite angles are vertically. Simple है, फिगर को ध्यान से देखिए. These two lines intersect by this transversal, so opposite angles 1 and 4, 2 and 3, 5 and 8, and 6 and 7. Now question is there, 1 is equal to 4, we will prove it later on, okay. 2 is equal to 3, 6, 7, 8 में तो डायरेक्टली लिखते थे वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में आप लिखते थे VOA, लिखते थे ना. सो 5 is equal to 8 and 6 is equal to 7. So these vertically opposite angles are equal. So let me test you. If one angle is given, then how to find out the other angle? Find the measure of the missing angles. Missing angles अगर आपने vertically opposite देखा होगा तो ये आपका 125 डिग्री है. So what do you think about this angle? This is also 125 डिग्री. और रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न ज्योमेट्री में मस्ट है, रीज़न लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, सो दिस इज 55 डिग्री, देन इट विल बी हाउ मच? दिस इज ऑल्सो 55 डिग्री. इफ दिस इज 55 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 55, तो ब्रैकेट में इसके सामने क्या लिखेंगे हम? VOA या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, नाउ टेक नेक्स्ट supplementary angles. Supplementary angles or linear pair, two angles that form a line. If two angles जिनका sum 180 डिग्री हो, then these two angles are linear pair or supplementary. Supplementary angle means if the sum of two angle is 180 degree. Complementary means if sum of two angles is 90 degree. But here is the matter of linear pair or supplementary angle. See, the yellow picture shows 1 and 2 are linear pair or supplementary. देखिए दोनों का सम कितना है? 180. Okay, so 5 and 6 also, yes, its sum is 180. Correct. अब इसमें और भी आप देखिए, if ट्रांसवर्सल के अगर इस रेंज में देखेंगे तो 1 + 3 also 180. This is also linear pair, है ना. इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 होगा. 2 + 4 180, 5 + 7 180, 7 + 8 180, 8 + 6 180 according to this transversal. So supplementary angles और linear pair angles का सम कितना होता है? 180 डिग्री. इनको हम supplementary भी कहते हैं. If one angle is given, then we can find out the other angle also. So supplementary angles और linear pairs में let's be practice with this question. Find the measure of the missing angles. Suppose this is x, question mark is x. So x plus 72, how much? X plus 72, x plus 72, that is equal to 180 डिग्री, right? अगर ये 180 हो गया तो what do you mean by x? तो x हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री. लो, अब आप इसको माइनस करके देख लीजिएगा कितना आता है. मैं ओरल बता देता हूँ. ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा कितना? 8
यस, और यहाँ कितना आएगा 92। चेक करते हैं, 8 और 2 10, नहीं 108 डिग्री। इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन 108 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 72 डिग्री। चलिए आप इधर भी देख लीजिए, अगर आप हम इसको क्या ले लें y, तो एक थ्योरी ये कहती है कि y प्लस 72 180 करिए तो ये भी 108 होगा। तो जब ये 108 आया और ये 108 था तो दोनों कैसे एंगल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो x इज इक्वल टू वाई। ऐसी कंडीशन में भी आप बता सकते हैं आंसर। ओके, सो 180 माइनस 72। चलिए करस्पॉन्डिंग एंगल डिस्कस करते हैं। टू एंगल्स दैट ऑक्यूपाई करस्पॉन्डिंग पोजीशंस, सी द करस्पॉन्डिंग पोजीशन। टॉप लेफ्ट देख रहे हैं, यस, एंड टॉप राइट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सी टॉप लेफ्ट यहाँ देखना है, इस एंगल को इससे, ये दोनों करस्पॉन्डिंग बनेंगे, और इस एंगल को देखना है इससे, दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर तो हम ये भी देख सकते हैं इसको और इसको। ओके, आगे देखते हैं, बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट। तो टॉप लेफ्ट और टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट्स, ऐसे केसेस को इस तरह अच्छी तरह समझ सकते हैं कि विच एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए किस तरह से फाइनल करेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग, 2 एंड 6 आर करस्पॉन्डिंग, 3 एंड 7 जो बॉटम लेफ्ट में आर करस्पॉन्डिंग, 4 एंड 8 आर करस्पॉन्डिंग जो बॉटम राइट में है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 5, एंगल 2 इज इक्वल टू 6, एंगल 3 इज इक्वल टू 7 एंड फाइनल एंगल 4 इज इक्वल टू 8 जो बॉटम राइट्स में है। ओके, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स, लेट्स मेक द प्रैक्टिस। इफ this angle is given how much 45 degree, so the question mark of this angle also 45। रीज़न क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, अगर इसको x निकालेंगे तो 145, x इज इक्वल टू 145, और सामने ब्रैकेट में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सी now let's we take alternate interior angles, two angles that lie between parallel lines on opposite sides of the transversal। this is our transversal, है ना। अब this angle and this angle है ना, between parallel lines on opposite sides of the transversal ये हुआ, इसका opposite ये हुआ, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 एंड 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो सामने ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कुछ बच्चे शॉर्ट में भी लिख देते हैं ए डॉट आई ए, ये देखिए ऐसे ए आई, ओके, एंड ए, just I am writing through my mouse, so I am very slow, but are you able to understand? 3 is equal to 6 and 4 is equal to 5, alternate interior angle. Next, yes, 3 6, yes, by color 4 is equal to 5, so these angles are equal. Let's take an example. Find the measures of missing angles. Yes, alternate interior है, तो ये 82 अगर हुआ ये एंगल, तो इसका अपोजिट, अल्टरनेट अपोजिट ये होगा, ये भी कितना हो जाएगा 82। सो ब्रैकेट में क्या लिखना है, अगर इसको x ले लिया तो x इज इक्वल टू 82, देन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इफ दिस इज 98 एंड दिस विल बी 98 थ्रू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हमें यह भी चेक कर लेना है कि लीनियर पेयर से भी इनका सम 180 हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर को ध्यान से सुना आपने, अब एक्सटीरियर को भी आप एक बार समझ लीजिए। टू एंगल्स दैट लाई आउटसाइड पैरेलल लाइंस ऑन अपोजिट साइड्स, आउटसाइड ऑफ द पैरेलल, वो था कहाँ, इनसाइड ऑफ द पैरेलल लाइन, ये कहाँ है, आउटसाइड ऑफ द पैरेलल लाइन। सो सी येलो कलर 1 2 और 7 8, yes, alternate opposite sides of the transversal,
एंगल 2 इज इक्वल टू 7, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, देखिए ऊपर की लाइन का एंगल 2 भी आपका एक्सटीरियर है, बाहर है ना, और इसका ये 7 भी एक्सटीरियर, ये आउटर में है ना, सो 2 इज इक्वल टू 7, रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, 1 इज इक्वल टू 8। लेट्स सी द स्टूडेंट्स 2 कॉन्ग्रेंट टू द 7। अब कॉन्ग्रेंसी का जो सिंबल है ये आपने सीखा होगा क्लास 7 से। इफ 2 पार्ट्स आर कॉन्ग्रेंट देन दे आर इक्वल एंड सिमिलर। तो जो अपर ये सिंबल है ये सिमिलरिटी का है, और ये तो दोनों इक्वलिटी के हैं, आप अच्छी तरह जानते हो। तो जब भी कभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हों या एक्सटीरियर एंगल्स हों तो इक्वल तो होते ही हैं, देन दे आर सिमिलर ऑल्सो। ओके, अल्टरनेट एक्सटीरियर का एक एग्जाम्पल देखिए, वेरी गुड। सी वाई दिस एंगल इज 120 बाय exterior, alternate exterior angle. If this is 60, so which angle will be 60? I think this one. Let's see. Yes, same. चलिए डिस्कस करते हैं consecutive interior angles. Two angles that lie between parallel lines on the same sides of the transversal. Two angles, same side of transversal. कभी कभी इसके न्यू नेम्स को इंटीरियर से भी बच्चे कॉल करते हैं। सी 3 and 5 are consecutive interior angle, 4 and 6 are consecutive interior angles because they lies between the parallel lines on the same sides of the transversal. Transversal के same side में आपके जितने भी एंगल होंगे ये दोनों एंगल हैं, ये इधर 3 और 5 हो गया consecutive interior या को इंटीरियर, और 4 and 6 हो गया। Now let's see what is the basic property of को इंटीरियर या कॉन्जिक्यूटिव का को ले लिया, पूरा कॉन्जिक्यूटिव कॉल नहीं करते हैं बच्चे, इस कॉन्जिक्यूटिव का ही को लेते हैं, देन दे कॉल इट को इंटीरियर, राइट। यस, 3 and 5 सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस 3 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स रिकॉल योर यूक्लिड ज्योमेट्री, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू रिकॉल द फिफ्थ पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड, he says that the same side of these two angle must be less than 2 right angle. अगर इन दोनों का sum less than 2 right angle होगा then the lines will intersect this side. ओके, तो अब अगर दोनों का sum ही less than है ना more than है, equal to कितना है 180 है, so you have to correlate with Euclid's fifth postulate कि अगर दोनों consecutive interior angle का sum को interior का sum 180 है, 4 + 6 180 है, that means these two lines are parallel to each other. इसका कन्वर्स भी सीख लीजिए आप इस समय। ओके, if lines are parallel, L and M are parallel, then the angle 3 + angle 5 must be 180 degree. Otherwise क्वेश्चन अगर उसने इस तरह से रिवर्स किया कि if their angle 3 + 5 is equal to 180, then what you say about the line L and M? You say direct L and M are पैरेलल, और रीज़न लिखिए, सेम साइड ऑफ द एंगल सम इज 180 डिग्री, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, इस तरह से आपको अपने प्रीवियस चैप्टर से कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ना है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का एक एग्जांपल लीजिए। इफ़ दिस एंगल इज गिवन हाउ मच इंटीरियर में 135, सो व्हाट विल बी दिस, सिंपल है, दोनों का सम 180 होना चाहिए, 180 - 135। ओके, yes, so students let's we discuss a theorem, very important. If two lines intersect then vertically opposite angles are equal. NCERT में क्लियर दिया हुआ है ये थ्योरम, और इसको बहुत अच्छे से मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। यस, सी two lines are there to intersect each other, AB and CD intersect each other at O. So यूक्लिड्स ज्योमेट्री में थ्योरम्स के 4 पार्ट्स बताए गए हैं। 1 गिवन, 2 सेकंड हो जाएगा टू प्रूव, थर्ड हो जाएगा कंस्ट्रक्शन इफ़ रिक्वायर्ड, ज़बरदस्ती नहीं कंस्ट्रक्शन करना, इफ़ रिक्वायर्ड देन प्रूफ। और जब भी प्रूफ करेंगे तो उसके सामने, हर स्टेटमेंट के सामने एक रीज़न लिखना होता है कि अगर कहीं करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी, कहीं अल्टरनेट इंटीरियर अप्लाई किया है, देन यू राइट देयर। ओके, सो गिवन में है 2 लाइन्स AB एंड CD आर intersecting each other at O. To prove
प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD वर्टिकली अपोजिट, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। ये देखिए, ये आपको इसके इक्वल लाना है और ये आपको इसके इक्वल लाना है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं। अब 9th से प्रूफ करना सीखिए। ओके, कंस्ट्रक्शन नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस, वी स्टार्ट विथ प्रूफ। सी रे OA, दिस इज स्टैंड्स ऑन लाइन CD, this is the CD, correct? So angle AOC plus angle AOD लीनियर पेयर एक्सियम से, ये देखिए लीनियर पेयर एक्सियम से टोटल कितना होगा, दोनों का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ऑल्सो AOD प्लस BOD 180, देखिए AOD एंड BOD बिकॉज रे OD स्टैंड्स ऑन AB, तो इसका भी सम क्या होगा 180। अब बताइए इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का सम अगर 180 है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट, लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों का LHS इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये 180 इक्वल हो गया। आई थिंक इन दोनों LHS RHS में कोई एक चीज़ कॉमन होगी, कौन है, AOD एंड AOD कैंसिल आउट। दिस इंप्लाइज दैट एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। लेट्स सी, ये हो गया एंगल AOC इज इक्वल टू BOD, इट मीन्स यस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जिस तरह हमने AOC BOD को इक्वल किया है उसी तरह हम BOC और AOD को भी इक्वल कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री में एक शॉर्टकट मान लिया गया है कि जैसे ही आप फर्स्ट प्रूफ करेंगे और सेम मैनर का सेम कैटेगरी का अगर सेकंड प्रूफ भी है तो आप नॉट नीड टू प्रूव इट, यू राइट ए वेरी कॉमन वर्ड सिमिलरली। जैसे ये सब किया है वैसे ही करने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली इसकी तरह इट कैन बी प्रूव दैट एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, राइट। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्लास 6, 7, 8 में हम वी राइट डायरेक्टली इफ़ एनीबडी आस्क फ्रॉम अस कि व्हाट इज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, तो बच्चे हमसे कूद के बोलते हैं सर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, सी द ट्राइंगल PQR, इंटीरियर एंगल आर 1, 2 एंड 3, सो एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जामिनेशन में अक्सर ये लिख के आता है, प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, सो लेट्स सी, गिवन में क्या लिखेंगे, अ ट्राइंगल PQR, वेरी गुड। टू प्रूव में क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल्स जितने भी हैं 1 + एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मैनी स्टूडेंट्स राइट डायरेक्टली 1 + 2 + 3, व्हाट इज 1 + 2 + 3। अगर आप एंगल का ये सिंबल नहीं लिखेंगे यहाँ, ये नहीं बनाएंगे यहाँ पर, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, नेचुरल नंबर और होल नंबर थोड़ी लिखना है, यहाँ एंगल लिखना है, अंडरस्टैंड। ये हमें प्रूव करना था। नाउ in this theorem we require this construction, draw a line XPY parallel to QR। देखिए ट्राइंगल का जो बेस है वो QR है। अब आपने ट्राइंगल के इस वर्टेक्स से पास होती हुई दिस लाइन XY कंस्ट्रक्ट कर दी जो किसके पैरेलल है, QR के। सीधा कंस्ट्रक्शन। ओके, सो व्हेन वी कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन देन वी राइट प्रूफ। सी स्टूडेंट्स, XPY is a line. Yes, XPY is a line. This XPY parallel to the QR. Remember, we constructed. So if XPY is a line, then angle 4, angle 1 and angle 5, all three angles are linear pair angles. तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। See, angle 4, angle 1, angle 5, sum is 180 degree. Equation number 1. Okay. Then but XPY parallel to the QR by the construction given, है ना। So PR are transversal. See this. This is the transversal for this line and this. Remember students, alternate interior angles का concept हम लोगों ने डिस्कस किया था। Yes, एंगल 4 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो फर्स्ट केस ये हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, यस, एंड पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, नेक्स्ट स्टेप, व्हेन बी सब्स्टिट्यूटिंग एंगल 4 एंड एंगल 5 इन 1,
सी इस 1 में 1 और 5 की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, हैं 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना, राइट। सो 4 सब्स्टिट्यूटिंग 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1, 4 की वैल्यू रखेंगे 2 और 5 की वैल्यू रखेंगे 3 इन 1 में, तो 4 की जगह क्या लिख दिया हमने 2, एंगल 5 की जगह क्या लिखा हमने 1 नहीं 3 सॉरी, एंड 1 इज सेम from first equation. So it become angle 2 plus angle 1 plus angle 3. Now put in order. First you write angle 1, then plus angle 2, then plus angle 3. That is equal to 180 degree. और लास्ट में लिखना है हमको hence proved. जैसे ही कोई थ्योरम या क्वेश्चन प्रूव करते हैं तो वहाँ पर भी ये हमको लिखना पड़ता है hence proved. Okay? If you write the hence proved, अब यूक्लिड्स एंड सो इन एंशियंट पीरियड में तो लिखते थे हम लोग QED, क्विड इरेक्ट डिमोस्ट्रेंडम, है ना। जब भी कभी हिंदी में या संस्कृत में इन सब को प्रूव करते थे तो लिखते थे इति सिद्धम। अब इंग्लिश में क्या लिखते हैं हम लोग, हैंस प्रूव्ड। ओके, सेम प्रूफ फ्रॉम द NCERT I have taken. Okay, very common, but this proof belongs to exterior angle property. See, if a sides of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior angles. See students, this is the triangle PQR. Okay, right, we produce QR up to S. ये देखिए S तक हमने इसको प्रोड्यूस किया, या ना। सो सम ऑफ टू इंटीरियर, इंटीरियर में कौन कौन सा एंगल था हमारा, एक एंगल यहाँ 1 है, दूसरा एंगल ये 2 है, तो इंटीरियर का अपोजिट में जो है वो एक्सटीरियर कौन सा है, 4 है, यानी कि हमें प्रूव करना है 1 + 2 इज इक्वल टू 4. नाउ फर्स्ट हेडिंग वी राइट सेम मैनर गिवन, देन वी राइट टू प्रूव में क्या लिखेंगे 1 + 2 इज इक्वल टू 4, गिवन में क्या लिखेंगे ट्राइंगल PQR, एंड कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे प्रोड्यूस QR अप टू S. एंगल्स के नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4. ओके, नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय एंगल 3 + 4, इट इज 180. सी वाई 3 + 4 इज इक्वल टू 180. वाई, यस, लीनियर पेयर एंगल्स. ओके, ऑल्सो यू सी, now last slide we proved angle sum property of a triangle. So see in the triangle PQR, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180. Again y, reason क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे angle sum property of a triangle होती है 180. So see the equation 1 and 2 both are equal to the 180 and 180. So our left hand side also equal. अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड हमारी अगर इक्वल है तो इन दोनों में कॉमन कौन है 3. सो कैंसिल आउट, देखिए यहाँ मैंने कैंसिल किया है 3 कैंसिल 3. सो व्हाट यू ऑब्टेन एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 4. इफ यू अप्लाई दिस थ्योरम इन एनी क्वेश्चंस, देन इन ब्रैकेट यू राइट सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द वन एक्सटीरियर एंगल. So this is, or you may write directly exterior angle property also. Okay children, this is very common and very useful theorem. First कौन सी थी, angle sum property of a triangle, और now we proved here exterior angle property of a triangle. Okay, see in the figure also by the name of angles, angle ACD, exterior हो गया angle ACD प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BAC, टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हो गए आपके, और उनका सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा. इन दिस चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स we must discuss about the collinear points also. What are collinear points? Learned in class 9th. If 3 or more points lie on the same line, if 3 or more points lie on the same line, they are called collinear. So many students क्या करते हैं, कभी डिस्कस करने के लिए बोलते सर एक पॉइंट ये हो गया और एक और हो गया, तो क्या ये कॉलिनियर है कि नहीं है, अरे तो ये यहाँ क्या,
ये तो यहाँ भी हो सकते हैं, ये लो। ओके, 2 पॉइंट्स यस इफ दे आर ऑन द सेम लाइन, बट डेफिनेशन कहती है 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। तो हमारी डेफिनेशन कॉलिनियर के लिए 3 और मोर, 3 पॉइंट्स हो सकते हैं कॉलिनियर एंड मोर पॉइंट्स, उसके ऊपर और ज़्यादा। 2 तो क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन ही बनाएंगे, बट 3 पॉइंट्स अगर ले लिया जाए, एक यहाँ ले लिया जाए, एक यहाँ ले लिया जाए, एक ये ले, क्या ये कॉलिनियर है? नो, दे आर नॉट कॉलिनियर। वाई? बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। सी, दिस इज द थ्योरम ऑफ एनसीईआरटी जो जस्ट मैंने लास्ट स्लाइड में प्रूव की है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मैंने उस थ्योरम को कम्प्लीटली प्रूव करके दिखाया कि सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। देखिए उन्होंने प्रूफ डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट अबव दिस दिस दिस। वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूक्लिड। और यूक्लिड ने किसी भी प्रूफ में 4 पॉइंट्स डिसाइड किए हैं। 1 गिवन, सेकंड टू प्रूव, थर्ड कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड, थर्ड उसके बाद फोर्थ प्रूफ। ओके, सो प्रूफ में भी ये ध्यान रखना है कि इफ, देखिए इस स्लाइड में, इफ यू राइट एंगल 4 इज इक्वल टू 2 एंड 5 इज इक्वल टू 3, देन वी राइट द रीजन ऑल्सो इन द ब्रैकेट in the geometry. Basically, you remember students, please, if you want to learn geometry, then try to write the basic logic या basic reasons कि why you given angle 4 is equal to 2 or angle 5 is equal to 3. Okay, because in this case they are pair of alternate interior angles. Students, I would like to remind you some basic problems from your textbook, and my request to you, please, if you focus on these questions, I will not solve all these problems. These problems basically I find out for you. Do the practice, and when you are going to appear in your PT1 PT2 और जिसमें भी ये चैप्टर आना हो या एनुअल एग्ज़ाम, प्लीज़ मेरे ये क्वेश्चन आप करके जाइए। आई एम 100% श्योर आपके टीचर की भी इन पे नज़र रहेगी, वो भी पेपर बनाते समय इन क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। एंड दिस इज़ द एक्सरसाइज फर्स्ट है आपकी। इसमें आपको प्रूव करना है एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल हाफ ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल POS। इसका प्रूफ दैट जो दिया हुआ है, ये वाला 2 प्रूफ दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम में हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं इस फिगर के थ्रू। इफ़ यू राइट द एंगल QOR इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ से भी प्रूफ स्टार्ट करोगे 100% प्रूव्ड हो जाएगा। अगर आप इधर से प्रूव करेंगे POR इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज PQ इज परपेंडिकुलर QR गिवन दिया हुआ है, ये देखिए, तो यहाँ से भी ये प्रूव्ड हो जाएगा। अगर हम सभी ऑल 3 एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 लिखकर स्टार्ट करेंगे, इससे भी ये एंगल ROS हाफ ऑफ दिस प्रूव्ड हो जाएगा। बट अब आपको अपना माइंड मेकअप करना है कि मैथमेटिक्स में आपकी अप्रोच कैसी है। फर्स्ट यू रीड द ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम केयरफुली, ओके, देन मेक योर माइंड डिसाइसिव, डिसीजन लीजिए कि मुझे फर्स्ट स्टेप से ऐसे अप्रोच प्ले करनी है इस ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स में कि मैं अपने इस 2 प्रूफ तक पहुंच जाऊं। बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो ये तो आपके लिए चैलेंज, तो टारगेट तो दे ही दिया उसने कि आपको इस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो आंसर ही दे दिया उसमें। सो इफ़ यू रिमेंबर योर ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल थ्योरम्स अप्लाई इन दिस प्रॉब्लम with logic, with reason, I am 100% sure you will reach the destination. You will prove that. Understand? सेम प्रॉब्लम मैंने सेकंड एक्सरसाइज से आपके लिए फाइंड आउट की है। इसको बेसिकली मिरर प्रॉब्लम कहते हैं, और ये 9th क्लास में है। जैसे ही आप 2-3 महीने पढ़ोगे तो फिर इसके बाद इस चैप्टर के नाम पे ये प्रॉब्लम अक्सर की P and QR 2 mirrors placed parallel to each other, PQ and QR, ये these RS are 2 mirrors parallel रखे गए हैं। ओके, इसमें भी अगर पैरेलल है तो देखिए ये ट्रांसवर्सल है BC आपका, इसमें भी अल्टरनेट इंटीरियर मिलेंगे। आपको सिर्फ इतना प्रूव करना है कि ये AB
एंड सी डी आर पैरेलल बस। तो कोई भी एनी टू लाइन्स आर पैरेलल, क्या क्या कंडीशन होती है पैरेलल लाइन्स की? मैनी कंडीशंस आर देयर। फर्स्ट, इफ ट्रांसवर्सल इज गिवन, सेम साइड एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। ट्रांसवर्सल गिवन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अगर इक्वल हो गए तो भी आप लाइंस को पैरेलल लिख सकते हैं। एनीवे, रिमेंबर, रिकॉल ऑल बेसिक प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स अप्लाई, देन यू हैव टू प्रूव दैट। इसलिए मैं कंडीशनल प्रूव दैट ही प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर आया हूँ। ओके, फिर आगे कभी कोई स्लाइड बनाऊंगा तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, नो प्रॉब्लम। दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट एक्सरसाइज के पहले दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बेसिकली इसमें एक ये ट्राइंगल है, ये देखिए ट्राइंगल ABC। अब इस ट्राइंगल में AB को प्रोड्यूस किया है कहाँ? E तक, और AC को कहाँ तक प्रोड्यूस किया है? D तक। जैसे ही उसको एंगल CBE मिला तो इसने क्या किया? एक्सटीरियर एंगल ये बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसे ही उसने इस एंगल को भी बाइसेक्ट किया है OC से, तो एक्सटीरियर पार्ट में ये एक एंगल बन गया। ये स्टूडेंट्स, इस व्हाट इज दिस एंगल? BOC। यस, ये देखिए टू प्रूव में लेफ्ट साइड में क्या लाना है? BOC। 90 माइनस C, हाफ ऑफ BAC। देखिए BOC आपके इस ट्राइंगल का ये वर्टेक्स है, लेकिन BAC ये वर्टेक्स है। तो इस BOC की वैल्यू 90 माइनस अगर x कर दोगे, हाफ ऑफ x, तो इसके इक्वल आनी चाहिए। अंडरस्टैंड? इसको हम लोग सो मैनी टाइम्स, और इसका एक रिवर्स प्रॉब्लम भी है, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, इसका रिवर्स प्रॉब्लम पहले बता देता हूं, जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम दिया है। यस, इसका कि ट्राइंगल गिवन है, इसमें एक्सटीरियर एंगल उसने बाइसेक्ट किए थे, इसमें हम लोग इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट करेंगे। ये दीज टू एंगल्स आर इक्वल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस। ओके, सेम ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया लास्ट वाला C। ओके, और इसको बना दीजिए O। अब टू प्रूव, जो एक्सटीरियर में जो ट्राइंगल बनता है इसका बनता है 90 माइनस हाफ BAC, जो इंटीरियर में बनेगा तो एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ BAC। यू रिमेंबर प्लीज, इसको अगर करेंगे, ये NCERT में पहले था कभी ओल्ड वर्जन में, लेकिन जब भी आप इस प्रॉब्लम को करें तो यू रिकॉल दिस यंगर प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन का एक यंगर ब्रदर समझ लीजिए इसको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टू प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड? लास्ट एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप प्लीज दिमाग में रखिएगा। ओके, और ये तो सो मैनी टाइम रिपीट करेगा। इन प्रूव दैट वाली सारी प्रॉब्लम्स को मैंने फाइंड आउट करके आपके लिए इस पर्टिकुलर स्लाइड्स में रखा हुआ है। इनको सर्च करिए, इनको रिसर्च करिए, इनको डिस्कस करिए अपने टीचर्स के साथ, और अपने घर पर प्रैक्टिस के थ्रू इसे प्रूव करने का ट्राई करिए। और एक बात याद रखिए, अगर आपके टीचर जिस वे में आपकी टेक्स्ट बुक या अदर बुक किसी वे में सॉल्व प्रूफ करती हैं, आपको वो मेथड बिल्कुल ट्राई नहीं करना है। यू थिंक डिफरेंट, और जब भी आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर दैट टाइम यू आर एट द करेक्ट पाथ ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो जब भी कभी टीचर जिस वे में करते हैं प्रॉब्लम्स को प्रूफ, उससे डिफरेंट आप सोचना शुरू करिए। नहीं आता ना आने दो, कोई बात नहीं, बट योर ब्रेन शुड बी एक्टिव इन डिफरेंट मोड। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। आगे मैं इन प्रूफ दैट पर एक स्लाइड तैयार करूंगा आपके लिए, वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।